I'm Geeta Hooda with Genius Mentors. Welcome to English Grammar and Vocabulary course. So today we'll be doing adverbs. Before we do adverbs, again let's just recapitulate what we had done previously. So we have already done हम कर चुके हैं, क्या कर चुके हैं, हम nouns कर चुके हैं, we have done pronouns, we have done verbs, and we have done adverbs. Adverbs we have done adjectives, right? So we've done all these four things. So हमने ये चार चीजें कर ली plus parts of speech, तो वो तो है ये, वो basic था, that was the first step, we have already done that, वो एक पहला step था, वो हम कर चुके हैं. Now why am I talking about these is I'm talking about these because today when we are going to do adverbs, we will be trying to understand sentences formation and how these parts of speech are used in sentences, right? तो अभी मैंने आपको बनाया है nouns कर लिए, pronouns कर लिए, adjectives कर लिए हैं और verbs कर लिए हैं, और अब हम adverbs करेंगे. उसके साथ साथ हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे और ये भी हम रिकग्नाइज करने की कोशिश करेंगे कि सेंटेंसेस के अंदर ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे और कहाँ कहाँ हैं और क्या हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं. आर वी एबल टू आइडेंटिफाई देम आफ्टर डूइंग दीज फोर थिंग्स. इन चार चीज़ों को करने के बाद क्या थोड़ा सा हमारे इंग्लिश स्पीकिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट इजाफा हुआ है कि नहीं हुआ है. सो दिस इज व्हाट वी विल ट्राई टू फाइंड आउट बाय after having done all these four. We are going to try to understand whether we are able to pick out and recognize different parts of speech in sentences. Okay, right. Okay, so what is adverbs? Adverb is a word which modifies. I told you before also, modify means slightly changes. मैंने पहले भी बताया आपको, modify का मतलब होता है थोड़ा सा बदलाव लेके आना, ठीक है. So modify, MODIFIES, modifies, और इसका singular when you talk about एक वचन you will say modify. When you are talking of just one, okay, this is modify. Right? So the word which modifies the meaning of a verb, adjective or another adverb. तो वो शब्द जो थोड़ा सा बदलाव और ज्यादा मीनिंग लेके आते हैं एक नाउन में, एक वर्ब में, एक एडजेक्टिव में, या फिर दोबारा एक और एडवर्ब में. Have you understood? So those are adverbs. I'm just repeating it. Those words which tell you something more about a verb, about an adjective and about another adverb, they are known as adverbs. ठीक है? And they generally end in ly. Generally जहाँ पे भी आपको ly दिखेगा ना, वो generally क्या होता है, adverb होता है. जरूरी नहीं है कि all of them end in ly. जरूरी नहीं है कि सारे के सारे ly में ही मिलेंगे आपको, but generally जो ly में होते हैं वो adverbs ही होते हैं. Right? So let's just have a look at this small example. So just I told you, the way I was telling you that we are going to try to understand and we are going to try to break up the sentences into words and understand the words. So जैसे मैंने आपको पहले I reiterated before. Okay. See, now I've started using another word. इसको दोहराना है, मैं दोबारा इस चीज को दोहराती हूँ. Recapitulate means revise, right? So since the past 2-3 videos I have been using the word recapitulate and I hope you have understood the meaning of recapitulate. I hope it has just like soaked into your mind, ठीक है ना. तो मैंने जो है ना अभी 3-4 जो पहले वाले previous videos थे उसमें मैं word use कर रही थी recapitulate. Recapitulate का मतलब होता है to दोहराना, to revise. ठीक है. यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सेइंग रिकैप्चुलेट, दैट इज किसी चीज को दोहराना, अभी मैं रिट्रिएट बोल रही हूँ. रिट्रिएट मीन्स कि जो मैंने बोला है उसी चीज को वापस बोलना, दैट इज रिट्रिएट.
राइट. रिकैप्चुलेट मीन्स किसी चीज को रिवाइज करना, राइट. एंड रिट्रिएट मीन्स मैंने जो बोला है मैं उसी चीज को दोहरा रही हूँ. सो आई एम रिट्रिएटिंग. सो व्हेन यू आर टॉकिंग about English language, when we are talking of vocabulary, instead of saying I'm telling you again, you can say I'm reiterating again, right? तो अपनी vocabulary अच्छा करने के लिए ये बोलने की बजाय कि मैं तुम्हें दोबारा बता रही हूँ, you can say मैं दोबारा reiterate कर रही हूँ, मेरी बात सुनिए. Okay, right. So recapitulate, please just put it in your mind and leave it there, and now we'll start off with another word, reiterate. So again I'm reiterating this, that spelling of reiterating is R-E-I-T-E, rate. R-I-T-E-R-A-T, or you can learn it like this, R-E, rate. And the spelling is reiterate. This is the way you speak it. Reiterate. Okay, right. So again I'm reiterating the fact that I was saying that we will try to break up the words, break up the sentence and find out the words. यही कोशिश करते हैं अभी हम ये कोशिश करेंगे कि हम पूरे sentence को छोटे छोटे words में break up करके उनको parts of speech को understand करने की कोशिश करें. ठीक है. So what is Ramesh? Ramesh runs fast. What is Ramesh? Okay, it's a noun. What else? It's a proper noun. Why? It is a specific name of a specific person. ये एक proper noun है क्योंकि हम एक खास व्यक्ति का खास नाम ले रहे हैं. So this is a proper noun, right? Runs. मैंने आपको बताया है verbs में runs भी action words जो होते हैं वो verbs होते हैं. जो शब्द जो है हमें क्रिया करके समझाने पड़ते हैं उनको हम verbs बोलते हैं. तो ये क्या हो गया? ये verb हो गया. Fast क्या है? वो कैसे भाग रहा है? वो तेज भाग रहा है, वो धीरे भाग रहा है, वो नॉर्मल भाग रहा है, राइट. सो दिस इज हाउ, इसके बारे में ज्यादा बताया जा रहा है. दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एन एडवर्ब व्हिच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ अ वर्ब. सो वर्ब के बारे में ज्यादा बता रहा है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ एडवर्ब. ओके. नाउ व्हाट इज ही? ही इज अ वेरी गुड बॉय. व्हाट इज ही? Okay, I told you the last time also, it's a personal pronoun and it's a third person. And what is? Is the form of, I had told you be ka form है ना, is, am, are, was, were, all these are forms of the word be. So this is what? This is a verb. What is this? This is a verb. ये क्या है? Verb है. So he is a very good boy. Now what's a boy? बॉय मीन्स लड़का. लड़का किसी का नाम है लेकिन एक स्पेसिफिक नाम नहीं है. इट इज नॉट अ स्पेसिफिक नेम, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन नाउन, राइट. सो दिस इज कॉमन नाउन. ओके, राइट. नाउ व्हाट इज गुड? सोचिए, थिंक. आई डोंट वांट टू टेल यू. चलो, आई विल डू इट. आई विल डू द ऑनर्स. मैं आपको बताती हूँ. Good is telling us something more about boy. Good जो है ना हमें boy के बारे में ज्यादा बता रहा है. So this is what? This is an adjective. Cool? This is an adjective. Right. Now what is very? Very क्या कर रहा है? बहुत ज्यादा. यह बहुत ज्यादा अच्छा लड़का है. तो बहुत ज्यादा क्या बता रहा है? किसके बारे में बता रहा है? अच्छे के बारे में. अच्छे की क्वालिटी बता रही है. अच्छे की मात्रा कितनी है? So this is an adverb. Why? Because it is telling us something more about good. क्योंकि good के बारे में हमें ज़्यादा बता रहा है. That's why it is an adjective. It is an adverb. Okay? So I hope that's clear. Right. Now again, Pratik reads quite clearly. Pratik काफी सफाई से पढ़ाई करता है. ये पढ़ता है. पढ़ाई नहीं करता है, पढ़ता है. किताब या जो कुछ भी है काफी सफाई से पढ़ता है, राइट. सो व्हाट इज प्रतीक? अभी मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए. एवरीवन नोज दिस इज अ प्रॉपर नाउन. रीड्स क्वाइट क्लियरली. रीड्स मीन्स पढ़ना एंड पढ़ना मीन्स इन इंग्लिश रीड्स. सो दैट मीन्स इट इज अ वर्ब. एंड क्लियरली इज व्हाट टेलिंग यू कि वो
रीड्स जो है ना कैसे पढ़ रहा है, वो क्लियरली पढ़ रहा है। पढ़ाई कैसे कर रहा है, क्लियरली पढ़ रहा है, साफ पढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एडवर्ब हो गया, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ व्हाट इज दिस टेलिंग अस? ये क्वाइट क्या बता रहा है हमें? ये क्वाइट हमें बता रहा है कि बहुत ज्यादा साफ पढ़ता है, ठीक है। तो ये इसके बारे में और ज्यादा बता रहा है। और ये क्या है? दिस इज एन एडवर्ब। व्हाट इज दिस? दिस इज एन एडवर्ब। सो व्हाट इज दिस? दिस इज आल्सो एन एडवर्ब। Okay, so you look out here, the word which modifies the meaning of a verb, adjective and another adverb, और किसी और adverb को भी ज्यादा meaning देता है, वो भी एक adverb होता है। Okay, so this is what it is. Pratik reads quite clearly. Clearly is an adverb and quite is telling you more about clearly, so this is also an adverb. So Pratik reads quite clearly. Pratik बहुत साफ पढ़ता है। तो जो है ना क्लियरली जो है ना साफ जो है वो रीड्स के बारे में ज्यादा बता रहा है, और क्वाइट यानी कि बहुत ज्यादा जो है ना वो क्लियरली के बारे में बता रहा है, इसलिए ये भी एडवर्ब है एंड दिस इज आल्सो एन एडवर्ब। सो यू कैन टेक 2 seconds and just look at it. I will write it once more so it is even you people are able to understand it better. Okay, so runs fast. So this is an verb. Fast is telling you more about runs, so this is an adverb. ये run है, ये fast है, fast runs के बारे में ज़्यादा बता रहा है, इसलिए ये adverb है. Tells the meaning of a verb. Tells something more about a verb. He is a very good boy. ठीक है? Boy is a noun, right? And what is good? It is an adjective because it is telling you something more about boy. ठीक है? बॉय एक नाउन है एंड गुड एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि गुड जो है ना बॉय के बारे में हमें ज्यादा कुछ बता रहा है, ठीक है। एंड वेरी मीन्स बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा मीन्स वेरी इज टेलिंग यू समथिंग मोर अबाउट गुड, सो दिस इज एन एडवर्ब। और वेरी जो है वो आपको एडजेक्टिव यानी कि गुड के बारे में कुछ ज्यादा बता रहा है, इसलिए ये एक एडवर्ब है। क्लियर? सो एडजेक्टिव, राइट। नाउ प्रतीक रीड्स क्वाइट क्लियरली। प्रतीक काफी साफ पढ़ता है, तो रीड्स जो है ना दिस इज अ वर्ब एंड क्लियरली इज टेलिंग यू समथिंग मोर अबाउट रीड्स एंड क्वाइट इज टेलिंग यू समथिंग मोर अबाउट क्लियरली, सो इट इज एन एडवर्ब and this is also an adverb, right? So I will reiterate. Once more, ठीक है, that प्रतीक काफी अच्छी पढ़ाई करता है, काफी अच्छा पढ़ता है, पढ़ना साफ जो है वो बता रहा है, काफी साफ पढ़ता है, तो पढ़ना जो है जो साफ है वो पढ़ने के बारे में बता रहा है, सो ये एडवर्ब है। और जो काफी जो है ये भी आपको साफ के बारे में बता रहा है, यानी कि ये भी एडवर्ब है। इज दैट क्लियर? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बट यू विल गेट देयर। ओके, वी कैन ऑफ कोर्स डू इट। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। कितने प्रकार के एडवर्ब्स होते हैं? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री। अगेन लेट मी पॉइंट आउट टू यू, लैंग्वेजेस आर डायनामिक, ठीक है। लैंग्वेजेस डायनामिक होते हैं, वो हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो अगर आप थोड़ा रिसर्च करते हो तो एडवर्ब्स में और बहुत सारे आपको एडवर्ब्स मिलेंगे। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन, एडवर्ब ऑफ नेगेशन, बहुत सारे एडवर्ब्स मिलेंगे, मतलब काफ़ी तोड़ा हुआ है। many of these adverbs have been brought into the course, into different courses, but because we are doing only basic English grammar and composition, basic English grammar and vocabulary, we just need to focus on the basics. पर क्योंकि हम सिर्फ बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड बेसिक वोकैबुलरी कर रहे हैं, तो हमें इसके ऊपर ही फोकस करने की ज़रूरत है। हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए फ़िलहाल बात नहीं कर रहे हैं। ओके, राइट। नाउ एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्सप्लेन हाउ एन एक्शन इज डन, कि एक्शन कैसे हुआ, कैसे या किस तरीके से ये एक्शन हुआ,
It explains how an action is done, what kind of a manner was in what kind of a manner the action was done, किस तरीके से या कैसे ये action हुआ. Examples, let's see the example. The children are singing कैसे? Loudly. कैसे sing कर रहे हैं? बहुत जोर से चिल्ला चिल्ला के sing कर रहे हैं. You can say the children are speaking softly. Softly भी हो सकता है. The children are singing rhythmically. Rhythm के साथ sing कर रहे हैं. The children are singing. What else can you say? The children are shouting loudly. The children are playing loudly. All these loudly, singing loudly and softly. ठीक है. Rhythmically. All these are adverbs of manner because they are telling how. ये सब adverbs of manner है क्योंकि ये हमें बता रहे हैं कैसे. Okay. Neeraj plays the flute beautifully. Flute, this is a flute. बांसुरी जो होती है उसको flute बोलते हैं. Flute. बांसुरी is known as flute. 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 Okay, so Neeraj plays the बांसुरी, the flute beautifully. बहुत सुंदर तरीके से वो बांसुरी बजा रहा है. Okay, right. So he ran quickly. वो कैसे भागा? Slow, fast, normal speed पे वो quickly भागा. So you can see out here ly, ly, ly. So ly in the previous slide I had written also. It was out there that they generally end in ly. So you can see out here that they are ending. और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ly में ही ये end हो रहे हैं. ठीक है. Adverb of manner means जब आप ये question करते हो अपने आप को कि जैसे नीरज is playing the flute. नीरज flute play कर रहा है. कैसे? बहुत अच्छे से. Okay. So बच्चे खेल रहे हैं. कैसे? सॉफ्टली खेल रहे हैं. वो भाग रहा है. कैसे भाग रहा है? बहुत तेज भाग रहा है. धीरे भाग रहा है. वो सांस ले रहा है. कैसे ले रहा है? गहरी सांस ले रहा है. He is breathing deeply. He is breathing deeply. ठीक है. What am I doing? I am breathing deeply. Okay. So this is कैसे breathe कर रहे हो? Deeply breathe कर रहे हो. So have you understood adverbs of manner? Okay. Now adverbs of manner के different काफ़ी सारे words हैं और कुछ ये वर्ड्स मैंने यहाँ पे दिए हुए हैं और इन वर्ड्स को आप अगर देखोगे, इन वर्ड्स को बार बार यूज़ करोगे तो अपने आप आपकी समझ में आने लग जाएगा. अच्छा, ये एडवर्ब्स ऑफ मैनर है. सो आई हैव गिवन यू सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर वर्ड्स आउट हियर एंड इफ यू कीप लुकिंग एट देम एंड इफ यू कीप रिवाइजिंग देम अगेन एंड अगेन, इफ यू कीप recapitulating these words again and again, you will be able to start remembering. And even when you're looking at, when you start reading and you start improving your vocabulary, you can use these words and you can improve your English. Okay, right. So quietly, ly. Okay, ये मैं बोलना चाहती हूँ आपको. I just want to say something. Q-U-I-E-T, quietly. Q-U-I-E-T, quiet. I'll speak quiet. Okay. And Q-U-I-T, quite. This is quite and this is quiet. E is behind out here, E is in front out here. ठीक है. यहाँ पे E पीछे है T के और यहाँ पे E T के आगे है. दोनों में डिफरेंस है. राइट. ये quiet means चुप. Please keep quiet. Please चुप रहिए. Quiet. ठीक है. And this is quite. I am quite happy. मैं काफी खुश हूँ. You managed to get a 8 out of 10 or you managed to get an 80 percentile. I'm quite happy कि आप
कोशिश करके आपके 8 आउट ऑफ 10 आया, या 80% आए हैं, या 8% आया, या 80% आया है, तो मैं बहुत खुश हूँ, मैं काफ़ी खुश हूँ. ठीक है, यू से आई एम क्वाइट हैप्पी, आई एम क्वाइट हैप्पी, राइट? ओके. पीसफुली, शांति से. द डेमोन्स्ट्रेशन एंडेड पीसफुली. जो रैली निकाली गई थी वो जो है शांतिपूर्वक खत्म हो गई. पीसफुली, शांतिपूर्वक, केयरफुली. ही वॉज कैरिंग द मिरर केयरफुली. वो शीशे को बहुत ध्यान से लेके जा रहा था. केयरफुली, ध्यान से. स्लोली, धीरे से. शी वॉज राइटिंग स्लोली. शी वॉज ईटिंग स्लोली. ओके. बैडली, खराब. Stop speaking badly to me. Stop speaking badly to me. Or you can say stop speaking rudely to me. R-U-D-E-L-Y. Rudely. Stop speaking rudely to me. You can use this also. He kept the papers badly. उसने ठीक से खराब तरीके से पेपर्स रखे, साफ अच्छे तरीके से नहीं रखे. ठीक है. क्लोजली, ही वॉज वॉचिंग द मैच क्लोजली. वो बहुत ध्यान से मैच को देख रहा था. क्लोजली, नजदीक से. इजीली, आसानी से. ओह, द टेस्ट वॉज सो इजी, आई डिड इट इजीली. ओह, टेस्ट इतना आसान था, मैंने आसानी से कर दिया. ओके. वेल, कि आई एम वेल, मैं अच्छी हूँ, मैं ठीक हूँ. ठीक है. Then fast, जल्दी. Cheerfully means खुशी के साथ. Happily, cheerfully. Okay? कोई काम करना हो, do it cheerfully. कोई काम करना है तो उसको खुशी के साथ करो. Okay. Then you have adverbs of time. ये आपको क्या बताते हैं? Tell the time when an action is done. They tell you the time when an action is done. ठीक है. किस टाइम? So you will answer, the question will come, किस टाइम? उसने दूध पिया था, किस टाइम? सवेरे पिया था. वो स्कूल के अंदर, वो क्लास के अंदर, वो कॉलेज के अंदर, वो कंपनी के अंदर पहुंचा, किस टाइम? 10 o'clock. Okay. So I met him. मैं उससे मिला कब? Last week. पिछले हफ्ते मिला था. ठीक है. He called me. उसने मुझे फोन किया. कब किया? कल किया था. So कल क्या है? Adverb of time. She waters the plants daily. वो रोज पानी देती है. So daily is what? Rose is what? Adverb of time. I hope that's clear. Okay, let's move forward. Okay, adverbs of time. Again, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. इनको आप देख सकते हो, बार बार देख सकते हो, और फिर इनको अपनी लैंग्वेज में जब आप लिखते हो, जब आप बोलते हो, इनको यूज़ कर सकते हो. और जब आप यूज़ करते हो तो आपको ये पता रहेगा कि एडवर्ब्स ऑफ टाइम है. सो आई हैव रिटन सम वर्ड्स बिहाइंड आउट हियर ऑन द बोर्ड. Use them again and again, look at them, revise them, and use them again and again. And especially when you're talking and you're using these words, you will understand that these are adverbs of time. Or when you know that when you know what you are speaking, and when you know that these words are such, these type of, they are adverbs of time, या फिर they are adverbs of place, या फिर they are verbs, and they are, nouns and pronouns. When you are speaking and you know what they are, it really improves your confidence, right? तो कुछ words यहाँ लिखे हुए हैं. मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंग्लिश में बोल रहे हो और आपको पता है, जब आप बोल रहे हो आपको ये पता है कि ये जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ, ये नाउन है, ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, या ये वर्ब है, ये प्रोनाउन है, जब आपको ये पता है और आप इन वर्ड्स को यूज़ कर रहे हो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली जो है ना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाता है, ऊपर चला जाता है. बूस्ट मीन्स ऊपर जाना. ओके. नाउ मीन्स अभी, येस्टरडे मीन्स कल, सून मीन्स जल्दी, लेटर मीन्स बाद में, टुमारो मीन्स कल, येट मीन्स अभी, अभी नहीं, अभी हाँ. आई हैव नॉट ईटन माई फूड येट.
मैंने अभी तक अपना खाना खाया नहीं. ओके, ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी ईटन माई फूड. मैंने अपना खाना खा लिया, मैं खा चुकी. टुनाइट, आज रात. टुडे, आज. देन, फिर. लास्ट ईयर, पिछले साल. लेट, लेट. अर्ली, जल्दी. बिफोर means पहले. So you can use these words as adverbs. When you are talking, you can use these words and you will know that they are adverbs of time. Okay? Okay. Right. Now adverbs of place. Where the action has taken place. कि कहाँ पे हुआ है? स्कूल में हुआ है, कॉलेज में हुआ है, कंपनी में हुआ है, घर में हुआ है, इंडिया में हुआ है, कहाँ हुआ है? Adverb of place. ठीक है? They answer the question where, at what place, कौन सी जगह पे, right? He stayed here. वो यहाँ रहा था, here. यहाँ पे रहा था वो. Let me change my okay. वो कहाँ रहा था? वो यहाँ रहा था. Out here. Place. Okay. Hiren parked his motorcycle nearby. Abhi is just 1 second. Okay. So what is he? Correct. Personal pronoun, third person. Stayed. Raha. Rehna. So what is it? It is a verb. Pronoun and a verb. And here this will be adverb of place. Clear? Okay. अब ये हिरेन क्या है? प्रॉपर नाउन. अभी तो मतलब बिल्कुल रट गया होगा. आई होप यू हैव रियली लर्नड इट एंड इट्स जस्ट कमिंग एज सेकेंड नेचर व्हेन आई एम आस्किंग यू आर एबल टू गिव मी द आंसर. ओके. पार्क्ड, पार्क करना, खड़ी करना. हिज इज व्हाट? पर्सनल प्रोनाउन, थर्ड पर्सन. मोटरसाइकिल, हमें पता है व्हाट इज अ, दिस इज अ मोटरसाइकिल. नियर बाय, उसने, हिरेन ने अपनी मोटरसाइकिल आसपास ही खड़ी करी है. नियर बाय, आसपास. सो आसपास क्या है? नियर बाय क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस. सो नाउ सी, वी नो दिस, वी नो दिस, वी नो दिस, वी नो दिस एंड वी नो दिस. हमें ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है. हमें पूरा इंग्लिश का सेंटेंस समझ में आ गया. Isn't it? Awesome. Great. So let's try this last one. काफी लंबा सेंटेंस है, ट्राई करते हैं. लेट्स सी. ओके, द तो मैंने समझाया ही नहीं अभी तक आपको, सो जस्ट द को तो साइड में रखो. लेट्स कीप. बर्ड्स, क्या? कॉमन नाउन. ओके. आर, व्हाट इज आर नाउ? टेल मी. आर इज द बी का जो फॉर्म ना, आर, एम, इज, वॉज, were, and these are what? Helping verbs, auxiliary verbs. So this is what? This is a auxiliary verb. Sitting, बैठना. So sitting is a word which you have to do and show. Sitting ऐसा शब्द है जिसकी आपको क्रिया करके बतानी पड़ेगी. अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं, if you want to explain what is sitting, you have to sit and show. अगर आपको ये समझाना है कि sitting क्या होती है, आपको बैठ के दिखाना पड़ेगा. Isn't it? So what is sitting? Sitting is a main verb. Perfect? Okay. On, I have not done. This I have not done. What is wire? What is this? This is a wire. Wire क्या होगा? नाम है किसी चीज का. So it is a common noun. Right? Above. कहाँ पे बैठी हुई है? ऊपर. तो ऊपर क्या बता रहा है? किस जगह पे बैठी हुई है? प्लेस के बारे में बता रहा है. सो व्हाट इज दिस? दिस इज एडवर्ब ऑफ प्लेस. अस क्या है? हमारे, हमारे ऊपर. वो चिड़िया वायर पे, वो चिड़िया तार पे बैठी हुई है हमारे ऊपर. राइट? तो अस क्या हो गया? हमारे हो गया. सो दिस इज अ पर्सनल प्रोनाउन, प्लूरल, first person. Wow, so we got it. We know this, we know this, we know this, we know this, we know this and we know this. हमें ये भी पता है, 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 सब कुछ पता है.
So we got it, man. Such a long sentence and we are able to understand it. Awesome. We are doing great. Well done. Okay. So adverbs of place, थोड़े से शब्द हैं, some words which we can learn and we can use again and again until they become second nature. कुछ ऐसे शब्द मैं यहाँ पे लिख रही हूँ जो हम याद कर सकते हैं और इतना उनको यूज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एक सेकेंड नेचर बन जाए. सेकेंड नेचर मीन्स कि बिना सोचे समझे हम वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं. दैट इज सेकेंड नेचर. ओके, राइट. सो अबव मीन्स ऊपर, अब्रॉड विदेश में. ही वेंट अब्रॉड, वो अब्रॉड चला गया. वो कहाँ गया? अब्रॉड चला गया. अगर मैं बोलती हूँ ही वेंट अब्रॉड, so what does it mean? It means he is again a personal pronoun, third person. Went is a noun, is a verb, sorry, जाना. And क्योंकि ये क्या बता रहा है? ये इसके बारे में बता रहा है कि कहाँ पे गया है. So this is adverb of place. Understood? Okay. Far means दूर, away means चले जाना, back means पीछे. Where is he standing? He is standing at the back. वो कहाँ खड़ा हुआ है? वो पीछे खड़ा हुआ है. ओके. हियर, कम हियर, यहाँ आइए. आउटसाइड, प्लीज गो आउटसाइड, प्लीज बाहर चले जाइए. नियर बाय, आसपास, जो भी मैंने बताया था आपको. और इसमें वेरी ईयर, नियर एंड बाय को ज्वाइन कर दिया है, इट बिकम्स नियर बाय. आउटसाइड, OUT, आउट प्लस साइड को ज्वाइन कर दिया है, इट बिकम्स आउटसाइड. तो ये क्या है वर्ड्स? दीज आर कॉल्ड compound words. What are they called? They are called compound words क्योंकि two words have been joined together. दो शब्दों को हमने इकट्ठा कर दिया, इसलिए इनको compound words बोलते हैं. Clear? Okay. So this is just trivia I am telling you. TRIVIA. Trivia means small nuggets of information which really do not relate to what I am telling you. ट्रिविया का मतलब होता है छोटे छोटे, मैं आपको नॉलेज के छोटे छोटे स्निपेट्स दे रही हूँ, छोटे छोटे नॉलेज के स्मॉल पार्ट्स दे रही हूँ ताकि वो आपके दिमाग में बैठ जाएं, आपको उनके बारे में पता चले, लेकिन वो इससे रिलेटेड नहीं है. जो मैं करवा रही हूँ उससे रिलेटेड नहीं है. सो दैट इज नोन एज ट्रिविया. ओके, सो TRIVIA, ट्रिविया. ओके. So compound. Behind means पीछे, he is standing behind me. Below means नीचे. The book is below the table. Okay. Down, I have put my pen down. Okay. So all these words are as adverbs of place and sometimes they can be used as prepositions. This I will explain. जब मैं prepositions करवाऊंगी तब मैं आपको समझाऊंगी how they can be used as prepositions. Okay, let's move further. Right. Adverbs of frequency. कितनी जल्दी जल्दी चीज हो रही है, that is adverb of frequency. साल में एक बार हो रही है, साल में 5 बार हो रही है, वो फ्रीक्वेंसी कितनी है, कितनी जल्दी जल्दी कोई चीज हो रही है. हाउ फ्रीक्वेंट द थिंग इज. ओके, आंसर्स द क्वेश्चन हाउ ऑफन, कितनी जल्दी. फॉर एग्जाम्पल, सो अगेन वी विल ट्राई टू डिसाइफर, वी विल ट्राई टू डिसाइफर ऑल द वर्ड्स. अभी यहाँ पे हम दोबारा इन सारे वर्ड्स को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे ताकि आर कॉन्फिडेंस इंक्रीजेस, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो, हमें पता चले हम कुछ भी कर सकते हैं. ओके, सो आई इज personal pronoun, first person. Read. So what is this? Read के लिए मुझे ऐसे करके दिखाना पड़ेगा ना, बुक लेके हाथ में. So that is a main verb. The, we don't know. Book, name of something, so it's a common noun. ठीक है. Twice. I read the book twice. मैंने ये किताब कितनी बार पढ़ी? 2 बार. So question क्या था? कितनी बार? How many times? So the answer is twice, यानी कि 2 times. So this is adverb of frequency. Okay, right. So again, she, we already know, it's a pronoun. Road means घोड़े के ऊपर या मोटरसाइकिल के ऊपर चलाना.
मोटरसाइकिल को चलाना या फिर घोड़े पे बैठ के घोड़े के साथ घोड़े को चलाना, राइड. सो शी रोड द हॉर्स, गधा नहीं, सॉरी, गधा नहीं, घोड़ा, सॉरी. सो शी रोड द हॉर्स फ्रीक्वेंटली, कि काफी जल्दी जल्दी वो घोड़े के ऊपर सवारी करती थी. ठीक है. सो रोड यू विल से सवारी, सवारी करना. ओके. दे, सो वी know this is a pronoun, we know this is a common noun, and we know this is an adverb of place, adverb of frequency. ठीक है. Now what is they? They is a personal pronoun, third person. Okay. Sometimes, कभी कभार करते थे. सो फ्रीक्वेंसी कितनी थी, कितनी देर में, कितनी जल्दी जल्दी करते थे, कभी कभार करते थे. ठीक है. प्लेड, खेलना, क्रिकेट. सो ये कॉमन नाउन हो गया, ये हमारा वर्ब हो गया, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, और ये हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया. आई होप दैट्स क्लियर. अगेन, what is this? I am getting a sore throat. Again, this is a trivia that I am telling you. I am getting, मुझे क्या हो रहा है, मुझे गले में खिचखिच हो रही है, sore throat हो रहा है, और ये जो मैं बता रही हूँ, it is a trivia. Trivia means कुछ मैं थोड़ी सी नॉलेज दे रही हूँ, लेकिन वो जो मैं करवा रही हूँ उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए इसको ट्रिविया बोलते हैं. ओके. ओके. सो अगेन वी हैव सम वर्ड्स विच वी कैन यूज एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. हमारे पास कुछ शब्द हैं जो हम यूज कर सकते हैं एज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी. ऑलवेज, हमेशा, डेली, रोज, समटाइम्स, कभी कभार, फ्रीक्वेंटली, काफी जल्दी जल्दी, नॉर्मली. हाँ, जनरली, नॉर्मली हम यही करते हैं, मतलब नियरली ऑलवेज हम यही करते हैं. जनरली, अगेन you can use the word normally, you can use the word generally, you can use the word, you can't use always. Normally and generally आप use कर सकते हो, एक दूसरे को interchange कर सकते हो, but you cannot say always. Always means every single time. It is not missed. हर एक बार ये चीज की जाती है, इसको एक बार भी मिस नहीं किया गया है. लेकिन नॉर्मली एंड जनरली में कि हाँ जनरली हम करते हैं, लेकिन कभी कभार मिस भी हो जाता है. दिस इज व्हाट जनरली या नॉर्मली मीन्स. इसका मतलब ये होता है. ओके. यूजुअली, अगेन दीज थ्री थिंग्स आर द सेम, नियरली द सेम थिंग. हाँ, हम जनरली यही चीज करते हैं, हाँ हम नॉर्मली यही चीज करते हैं, हाँ हम यूजुअली यही चीज करते हैं. ठीक है. ओके. I generally sleep at 9 p.m. I generally sleep at 9 p.m. ठीक है. I normally sleep at 9 p.m. I usually sleep at 9 p.m. ठीक है. मतलब मैं जनरली या नॉर्मली या यूजुअली 9 बजे सोती हूँ, लेकिन अगर कोई ऐसा काम आ जाता है तो ऊपर नीचे हो जाता है. बट जनरली मेरा क्या हैबिट है कि मैं 9 बजे सो जाती हूँ. ओके. यूजुअली क्या हैबिट है, 9 बजे सो जाती हूँ. नॉर्मली क्या हैबिट है, 9 बजे सो जाती हूँ. बट इफ आई से आई ऑलवेज स्लीप at 9 p.m. मैं हमेशा 9 p.m. सो जाती हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई गेस्ट आए, जो कुछ भी हो जाए, मैं 9 बजे तो सो जाती हूँ, फुल स्टॉप. दिस इज द डिफरेंस बिटवीन ऑलवेज एंड यूजुअली, जनरली एंड नॉर्मली. क्लियर? ओके. ओकेजनली मीन्स कभी कभार. I sometimes sleep at 9 o'clock. मैं कभी कभार 9 बजे सो जाती हूँ. I occasionally sleep at 9 o'clock. Okay.
occasionally and sometimes. I sometimes sleep at 9 p.m. I occasionally sleep at 9 p.m. What is the difference? इनमें difference क्या? इसमें थोड़ा सा there is a slight difference. इसमें slight means थोड़ा सा. इसमें थोड़ा सा I told you light spelling. इसके आगे s लगा दो slight. Slight means थोड़ा सा. There is a small difference. थोड़ा सा difference है. क्या difference है? I sometimes sleep at 9 p.m. मैं कभी कभार 9 बजे सो जाती हूँ. ठीक, मतलब on a scale of 1 to 10 या फिर एक हफ्ते में मे बी 2 या 3 बार मैं सो जाती हूँ 9 बजे. I occasionally sleep at 9 p.m. मैं कभी कभार 9 बजे सो जाती हूँ. इसका मतलब ये है कभी कभार, यहाँ पे occasionally का मतलब है 1 या 2 बार हफ्ते में, हो सकता है 1 बार या हो सकता है 2 बार, ज्यादा से ज्यादा 2 बार. दिस इज द डिफरेंस. और समटाइम्स में होता है कि हाँ समटाइम्स लिख के यहाँ 2-3 हो सकता है 4 बार भी हो सकता है मैं सो जाऊँ. दिस इज द डिफरेंस कि इसकी जो क्वांटिटी है ये काफी कम की तरफ है, इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा की तरफ. क्लियर? ओके. सेल्डम मीन्स कि बहुत कम. भैया वो तो इससे भी कम हो गया. आई सेल्डम स्लीप. सो इफ आई से आई सेल्डम स्लीप एट 9 p.m. ठीक है, लुक एट अंडरस्टैंड द डिफरेंस. इसमें यह है कि आई समटाइम्स स्लीप एट 9 p.m. यानी कि हफ्ते में मे बी 2-3 बार सो जाती हूँ. आई ओकेजनली स्लीप एट 9 p.m. का मतलब होता है कि हफ्ते में शायद एक या फिर 2 बार सो जाती हूँ. ठीक है. आई सेल्डम स्लीप मीन्स कि भैया बहुत 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 कम. तो समझ लो कि मैं 1 महीने में 1 बार मैक्सिमम. सेल्डम बहुत कम हो जाता है, गलती से कभी हो गया सो हो गया, वरना नहीं होता है. ओके. रेयरली एंड सेल्डम ये तकरीबन सेम है. ठीक है. आई सेल्डम स्लीप एट 9 o'clock, आई रेयरली स्लीप एट 9 o'clock, सेम थिंग. ठीक है. आई नेवर स्लीप, मैं कभी भी नहीं सोती हूँ 9 बजे, तो भैया सोना ही नहीं है, लिख रखा है. आई एम नॉट गोइंग टू स्लीप एट 9, so I never sleep at night. Once I slept at 9 o'clock. एक बार मुझे याद आ रहा है, मैं एक बार कभी मैं 9 बजे सो गई थी. Once. या फिर once I came first in class. Okay. Twice. I went out to lunch twice this week. I went out to lunch twice this week. Okay. I went out to lunch twice this week. बहुत बड़ा लग रहा है. This is personal pronoun. Went is what? It's a verb. Out. I will not tell you because I have not told you till now. इसके बारे में नहीं बताऊंगी. Lunch is what? Common noun. ठीक है. Lunch is common noun. Twice, frequency. कि इस हफ्ते में 2 बार. Twice. This week is adverb of what? Time. Last year. This week. All these are adverb of time. Okay? ठीक है. आगे समझ में. Okay? And thrice means 3 times. Once means once. एक बार. Twice means 2 बार. Thrice means 3 बार. Okay? Right. Now you have adverbs of degree. भैया कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा में. ठीक है.
of quality, state and relation. How much, to what degree, कितनी मात्रा में. Easy enough. So again, he too lazy. Now this is very interesting. What is this? He is too lazy. इसको हमने शॉर्ट बना दिया, शॉर्ट फॉर्म बना दिया इसका. कैसे बना दिया? By writing he apostrophe and s. He is too lazy. ठीक है. We can say he is too lazy, and if we are speaking very fluently we'll say he is too lazy. तो हम बोल सकते हैं he is too lazy, वह बहुत लेजी है. या फिर अगर हम बहुत जल्दी जल्दी और फ्लुएंटली बात कर रहे हैं इंग्लिश में तो हम बोल सकते हैं वो बहुत लेजी है. सो he is too lazy. Okay. So again, he is a personal pronoun. Lazy is what? It's an adjective. Why? Because it's telling you something about he. Okay. And two is कितनी मात्रा में lazy है? बहुत ज्यादा मात्रा में lazy. And she is very clever. Very क्या है? कितनी मात्रा में ये clever है? कितनी मात्रा में बहुत intelligent है? बहुत ज्यादा मात्रा में. Okay. He drove quite recklessly. Recklessly means not carefully. सावधानी ना बरतना. ठीक है. Stop being reckless. कि आप सावधानी नहीं बरत रहे. Okay. बेपरवाह. Okay. So he drove quite, कि काफी बेपरवाही से वो ड्राइव कर रहा था. So again, this is a pronoun, this is a verb, this is an adverb of degree, and this is adjective. ठीक है. Now again I am telling you quiet is चुपचाप and quite is काफी. वो काफी बेपरवाही से ड्राइव कर रहा था. देखो कैसे ड्राइव कर रहा है. देखो so intelligent, she is coming first. वो फर्स्ट आ रही है. He is so lazy. सोफा पे बैठ के अपना हाँ ठीक है. इसको ऐसे बंदों को लेजी बोलते हैं. बहुत लेजी बोलते हैं. ठीक है. इसको कोच पटेटो भी बोलते हैं. कोच पटेटो. This is a couch and this is a potato. So coach नहीं couch. Couch potato. Couch potato. O-U-C-H is ouch. इसको लग गया ouch होता है. ओके. कुछ लग गया, कोई कुछ भी लग गया, जोर से लग गया, इसे ouch. राइट. उसके आगे सी लगा दो. couch. Couch potato. It is not potato. जब आप स्पेलिंग याद करते हैं पोटैटो है, बट यू कॉल इट पोटैटो. व्हाट यू कॉल इट? पोटैटो. ओके. राइट. अगेन सम वर्ड्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ डिग्री. दैट इज वेरी, लिटिल, क्वाइट, इनफ. आई हैव इनफ मनी. मेरे पास ठीक मात्रा में पैसे. ठीक है. मेरे लिए सफिशिएंट है, मेरे लिए बहुत है. टू बहुत ज्यादा. मच भी ज्यादा होता है. ऑलमोस्ट मीन्स आई ऑलमोस्ट केम फर्स्ट. मैं तकरीबन फर्स्ट आ ही गया था. ओके. सो एंटायरली. एंटायरली मीन्स पूरा. ठीक है. आई सॉ शी एंटायरली सॉ द फुल शो. ओके. एक्सट्रीमली. आई एम एक्सट्रीमली कोल्ड. मुझे बहुत ठंड लग रही है. आई एम एक्सट्रीमली कोल्ड. एब्सोल्युटली. बिल्कुल ठीक बोल रही हूँ. ठीक है. शी शुड हैव लिसन टू मी. यू आर एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. उसने मेरी सुननी चाहिए थी. हाँ, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो. ओके. देन जस्ट. ओके. सो दीज आर द डिग्रीज ऑफ these are the 5 types of adverbs, and you are supposed to be knowing about them. The more you will practice, the more you will be able to become comfortable in the language. So iske liye, to help you practice more, let's start doing the word wall.
ओके, वर्ड वॉल, ऐसे शब्द लेके आती हूँ मैं ताकि आप उनको इम्प्लीमेंट कर सको, आप उनको यूज कर सको अपनी डेली लाइफ में, सो दैट यू रिप्लेस द हिंदी वर्ड्स विद इंग्लिश वर्ड्स एंड यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर इंग्लिश। ठीक है, मैं ऐसे वर्ड्स लेके आने की कोशिश करती हूँ जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, और जब हम इनको डेली लाइफ में यूज़ करेंगे तो आप जो है ना धीरे धीरे हिंदी वर्ड्स की बजाय इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करेंगे। जैसे आप ये बोलोगे कि कुर्सी लाना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कुर्सी लाना आप बोलोगे चेयर लाना। ठीक है, एंड इंस्टेड ऑफ सेइंग कि अखबार देना, यू कैन से न्यूज़पेपर देना। सो slowly replace these words with English words, and I am slowly increasing the level of the vocabulary, और मैं धीरे धीरे इन वीडियोस में अब vocabulary का लेवल जो है उसको इंक्रीज कर रही हूँ। तो आपको प्रैक्टिस करना बहुत 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 असेंशियल है। असेंशियल मीन्स ज़रूरी, असेंशियल यहाँ पे है क्या, असेंशियल, ESSENTIAL, इट इज़ असेंशियल। असेंशियल मीन्स ज़रूरी। Is that clear? Essential means zaruri. It is very necessary to revise again and again and again and again and again. Okay? Right. Random. I am getting random words. Random means without planning. Unplanned words लेके आ रही हूँ मैं, कहीं से कुछ भी पकड़ के मैं लेके आ रही हूँ। Random. This is a random question. We are talking about adverbs and you start asking me about वर्ल्ड न्यूज, दैट्स अ रैंडम क्वेश्चन। ठीक है, कि हम तो अभी यहाँ पे एडवर्ब्स की बात कर रहे हैं और आप मेरे से वर्ल्ड न्यूज के बारे में बात पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये तो बड़ा रैंडम क्वेश्चन पूछ रहे हो आप। ठीक है, बिना इसके मतलब बिना रिलेशन का क्वेश्चन पूछ रहे हो, रैंडम। ओके, बर्स्ट, फूटना, द बेलून बर्स्ट, गुब्बारा फूट गया, द बेलून burst, right? You can say this also. I ate so much that my stomach is bursting, right? I ate, just one second. Okay. So, I ate so much that my stomach is bursting. मैंने इतना ज्यादा खाया कि मेरा पेट फटने को हो रहा है, इट इज बर्स्टिंग। ओके, राइट। एलिगेंटली, ELEGANTLY, elegantly means बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुली, सुंदर, और सुंदर से भी ज्यादा एक क्वालिटी आना जिससे सब आपकी तरफ आकर्षित हो जाए। एलिगेंट, शी इज वेरी एलिगेंट, ग्रेसफुल है और उसको चलने का ढंग आता है और उसको कपड़े पहनने का ढंग आता है और बहुत अच्छे से बात भी कर सकता है या कर सकती है। ही इज और शी इज एलिगेंट, शी इज ड्रेस्ड एलिगेंटली। ठीक है, आकर्षित करना अपनी तरफ। ओके, एलिगेंट। ग्लीफुली मीन्स वेरी हैप्पीली, बहुत खुशी के साथ। She had studied so hard that she attempted all the questions gleefully. उसने इतनी मेहनत करी हुई थी कि और सारे क्वेश्चंस को उसने बहुत खुशी अटेम्प्ट किया, खुशी कोशिश करी। अटेम्प्ट, कोशिश, अटेम्प्ट, कोशिश। ओके, फॉर्चुनेटली, FOR, for, TUNATELY, fortunately। ठीक है, और स्पेलिंग, हाउ विल यू लर्न द स्पेलिंग? स्पेलिंग कैसे याद करोगे? फॉर, TUNATELY, fortunately, fortunately,
फॉर्चुनेटली आप ऐसे लर्न करोगे, लेकिन व्हेन यू स्पीक इट, प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण जब करोगे, इट इज गोइंग टू बी फॉर्च्यूनेटली, फॉर्चुनेटली, लकली, लकली, लकली मीन्स पता है ना हिंदी में? गुड। चलो फाइनली, आखिरकार, आई फाइनली क्लियर द टेस्ट, मैं आखिरकार टेस्ट क्लियर कर लिया। यूजुअली, ज्यादातर, जनरली, नॉर्मली, ठीक है, USUALLY, यूजुअली, यूजुअली, ये बोलोगे आप, यूजुअली, 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 रेज। नाउ what is raise and rise? इनमें डिफरेंस क्या है? What is the difference? Raise means कोई चीज या कोई व्यक्ति किसी चीज को उठाता है, दैट इज अ रेज, ठीक है। द कंपनी रेज्ड द सैलरी, तो सैलरी किसने बढ़ाई? कंपनी ने उसको बढ़ाया। राइज अपने आप से चीज बढ़ती है, ठीक है। द मिल्क राइजेस वेरी फास्ट व्हेन इट इज हॉट, वो अपने आप से मिल्क जो है ना, इट राइजेस। या फिर यू कैन से सन राइजेस, सन उगता है, अपने आप से होता है, ठीक है। लेकिन यहां पे रेज क्या है? कंपनी बढ़ा रही है। जब कोई चीज बढ़ाई जाती है, एक्सटर्नल फोर्स से, बाहर की ताकत से किसी चीज को बढ़ाया जाता है, तभी इसे रेज। और जब अपनी खुद की ताकत से वो चीज उठ जाती है, दैट इज राइज। हैव यू अंडरस्टूड? ओके, राइट। नाउ फाइनली, स्प्लिट, अलग होना। दे वर पार्टनर्स इन द कंपनी, नाउ दे हैव स्प्लिट। वो पार्टनर थे कंपनी में, अब वो अलग हो गए, दे हैव स्प्लिट। वेग, जो चीज क्लियर नहीं है, यू नो, द टीचिंग वॉज वेग, उन्होंने पढ़ाई क्लियर नहीं करवाई, समझ में नहीं आया। वेग, वेग ऐसे बोलते हो, वेग, वेग, ये वैग हो गया, सॉरी, वेग बनाना है इसको, वेग, ग, वेग, ये साइलेंट है। अर्बन, अर्बन, ठीक है, दिस इज urban, spelling is urban, but up you will not say urban, you are going to say urban. urban, urban क्या है? जो सिटी के रिलेटेड है, जो शहर से रिलेटेड है, उसको अर्बन बोलते हैं। जो शहर से रिलेटेड है उसको अर्बन बोलते हैं, अर्बन। एंड रूरल, 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 जो विलेज से रिलेटेड, विच इज रिलेटेड टू द विलेज, जो विलेज से रिलेटेड है, जो विलेज से, गांव से संबंध रखता है, उसको रूरल बोलते हैं। रूरल इकोनॉमी, वो इकोनॉमी जो गांव से रिलेटेड है। अर्बन इकोनॉमी जो अर्बन यानी कि शहर से रिलेटेड है। Cool? Right. So these are the words. These are the words on the word wall. So I hope you have understood what are adverbs and the different types of adverbs, and you've understood the word wall also, and you have understood the fact also that we are now able to understand sentences. ठीक है ना? So I hope आपने adverbs भी समझ लिए, adverbs of टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स भी समझ लिए, वर्ड वॉल भी समझ लिए, ये वर्ड्स भी समझ लिए, और हमने ये भी समझ लिया कि जो हम हैं, जो हम जो है ना अपने सेंटेंसेस को कैसे, अब हमें पता चलने लग गया कि हम सेंटेंसेस को समझ सकते हैं और सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, राइट। सो इट्स गोइंग टू बी अ बेटर, मोर एक्साइटिंग जर्नी नाउ, क्योंकि हमें अभी समझ में आ रहा है कि हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो,
लेट मी टेक योर लीव. स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे सेफ. सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. आप होम रहो ना रहो, स्टे सेफ. बाय. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.